Okay, so we'll talk about velocity. What is velocity? Velocity is nothing but the ratio of displacement and time. Velocity is nothing but a ratio of displacement and time. Okay, and we have discussed before that what is displacement. We have discussed before that what is displacement. Displacement. So can you tell me about the displacement? What is displacement? The shortest distance between initial position and final position. So this is known as displacement. Okay, so we can say that velocity is defined as the ratio of displacement to the time. So we can find that the SI unit, not meter, this is wrong. The डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर. और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड. ठीक है, तो ये हमारा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड. और मीटर पर सेकंड को हम कैसे शो करते हैं? ऐसे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो. इस सेकंड को जब आप ऊपर लेके जाओगे, अच्छा ये बताओ मुझे कि जैसे 1/x है, ये x अगर ऊपर जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर -1. बोलो, कैन वी राइट इट एज समथिंग? बोलिए, आर यू गेटिंग मी? Yes. Okay. So if we talk about the average velocity in case of uniform motion, what is uniform motion? I have told you before. What is uniform motion? Uniform motion means what? The covered distance or the time interval should be same. That is called uniform motion. So if we talk about the average velocity, but in case of uniform motion, so average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. Okay, so how can we write it? We can write it as average velocity. V average is equal to initial velocity is what? U. Final velocity is what? V divided by 2. This is average velocity only when in case of uniform motion. In case of uniform motion, so this formula will be applicable. U plus V by 2. U means initial velocity, V means final velocity, and 2 is 2. Initial velocity is U, final velocity is V. Okay. And if we talk about the average velocity in case of non-uniform motion, so we'll say that average velocity will be equal to total displacement upon total time taken. So these are the formula. Okay, learn these formula. Okay. So listen. If we talk about that average velocity, there are two formula for average velocity. First is U plus V upon 2, and second one is V average is equal to total displacement upon total time. Okay, so this formula is applicable only when uniform motion. Okay, and this formula is should be applied only when non-uniform motion. Is it okay or not? Is it okay or not? Yes, sir. Okay. Now, if we talk about okay, wait a minute. Okay, now if we talk about this diagram, so in this diagram we are seeing that there are two cars. First is green car and second is red car. They are coming towards each other. They are moving towards each other. एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है. और देखो फर्स्ट वाले का स्पीड कितना है? फर्स्ट वाले का स्पीड आपको शो हो रहा है ना? फर्स्ट वाले का सर स्पीड हर जगह U plus V upon 2 लगता है.
नहीं 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 नहीं, हर जगह नहीं लगता u प्लस वी अपॉन टू, ठीक है। u प्लस वी अपॉन टू हम सिर्फ तब लगाते हैं जब हमें कैसा मोशन दिया हो, यूनिफॉर्म मोशन दिया हो, ये तभी लगा सकते हो जब हमको यूनिफॉर्म मोशन दिया हो, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म Okay, मोशन, sir. ओके। सो रिमेंबर दिस फैक्ट, u plus v upon 2 is applicable only when in uniform motion, okay. But if we talk about the average velocity is equal to displacement upon time taken, so that formula will be applied only when the non-uniform motion, okay. Any problem? Hmm. क्या बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही? Mm. Sir, yes and no. ओके ओके। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे ये दो कार है, ये फर्स्ट कार इस डायरेक्शन में जा रही है, रेड कार इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बोथ हैव सेम स्पीड बट ऑपोजिट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी दोनों की ऑपोजिट है, बिकॉज वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी कंटेन डायरेक्शन, Hmm. ऐसा बोल सकते हैं ना, वेलोसिटी कंटेन डायरेक्शन। क्यों बोल सकते हैं ऐसा हम लोग, वेलोसिटी कंटेन डायरेक्शन? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे अगर इस ग्रीन कलर की जो ये कार है, इसकी वेलोसिटी अगर मान लो पॉजिटिव है, तो रेड कलर की कार की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी यहाँ पे, नेगेटिव, बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं वो। आर यू गेटिंग मी? Yes. Yes. ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ना? Yes. Okay, now we'll talk about the next topic or next slide. So, okay, look at this example. Look at this example. अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो, इसको जानते हो आप, ये जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखो इसको, Hmm. इसको देखो, ये क्यों हंस रहा है? Why is he You. laughing? पलक, Sir, I don't know. आपको नहीं पता ये क्यों हंस रहा है? Mm-hmm. ये इसलिए हंस रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है ना, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसलिए हंस रहा है, ये क्वेश्चन को देख के हंस रहा है, ठीक है। Okay, so the question is, consider, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ना? Yes. हाँ, तो फिर आप उस क्वेश्चन को पढ़ लो। कंसिडर योरसेल्फ गोइंग टू अ शॉप ऑन अ साइकिल, यू स्टॉप साइकिल मैनी टाइम्स ऑन द वे एंड देन यू कम फ्रॉम द शॉप टू योर होम। मतलब आप किसी शॉप पे जा रहे हो साइकिल से, आप किसी शॉप पे जा रहे हो, मान लो साइकिल से जा रहे हो किसी शॉप पर, ठीक है। और आप ऐसे जाते जाते कई बार आप बीच में रुके हो, और फिर उसके बाद हुआ क्या है कि एट लास्ट आप अपने घर पे आ गए, अपने घर पे आ गए शॉप से होके। तो डिस्टेंस फ्रॉम शॉप टू होम कितनी है, 3 किलोमीटर। मतलब जैसे मान लो कि ये शॉप है, ये क्या है, शॉप है, ठीक है, और ये आपका घर है, ये होम है। तो ये डिस्टेंस हमको कितनी दी गई है, 3 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमको दी गई 3 किलोमीटर। एंड टाइम टेकन फ्रॉम होम टू शॉप इज 1 आवर। और यहाँ पे जो भी टाइम लगा है ना, तो टाइम कितना है, 1 आवर का टाइम है। और टाइम टेकन फ्रॉम शॉप टू होम इज 2 आवर। और शॉप से फिर से घर आने में टाइम कितना लगा है, 2 आवर का टाइम लगा है। यानी ये T1 है और ये T2 है, ये T2 कितना हो गया हमारे पास, 2 आवर हो गया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है हमारा एवरेज स्पीड, ओके।
सुनो मेरी बात, कहाँ गई कैमरा, कहाँ गया? तो मुझे आप ये बताओ कि यस जैसे सर, कि आपकी आवाज ओके, तो मुझे आप ये बताओ कि जैसे वो जब अपने होम से शॉप जा रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 3 किलोमीटर। जब वो होम से शॉप जा रहा है कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 3 किलोमीटर। और फिर जब वो शॉप से होम फिर से आता है, फिर से उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 3 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? क्या आप बता सकते हो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो मैं ये पूछ रहा था कि जब वो अपने होम से शॉप जाता है तो 3 किलोमीटर चला, फिर जब वो शॉप से दोबारा लौट के होम आता है फिर से 3 किलोमीटर चला, जब टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है? 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 6 किलोमीटर यहाँ पे। तो ये देखो आप, टोटल डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3 + 3 यानी 6। तो टाइम कितना लिया उसने? पहले 1 बना लिया, फिर 2 आर लिया। आप अपने साइड से म्यूट कर लो या। तो ये 1 आवर हो गया और ये 2 आवर हो गया, तो टोटल टाइम यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 6/3 दैट इज 2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी आ गई एवरेज स्पीड। ओके, बट इफ वी हैव टू फाइंड एवरेज वेलोसिटी, सो व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? So what is the average velocity? How will you find that average velocity is 0? ये आपको कैसे पता चला कि एवरेज वेलोसिटी यहाँ 0 है? देखो सुनो मेरी बात, जैसे ये उसका होम है और ये उसकी शॉप है, मान लो जहां पे वो जा रहा है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ना वो कितना है? 3 किलोमीटर है। उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? होम से स्टार्ट किया था। वो शॉप तक गया, शॉप से फिर से लौट के होम पे आ गया। ठीक है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हो गया? यहाँ पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? 0। क्यों गया? क्योंकि उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? अपने होम से, और वो लौट के भी कहाँ पे आ गया? होम पे ही लौट के आ गया। ओके, तो उसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है? 0। अब जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो फिर जो है एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिंपल है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? बताइए। sir, your voice is lagging a lot. अच्छा, फिर तो अभी मैंने आपको बताया एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखो उसने क्या किया था, अपने घर से स्टार्ट किया, अपने होम से स्टार्ट किया, शॉप तक गया, होम से गया शॉप तक, और शॉप से फिर आ गया होम पे। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया? 0। और जब डिस्प्लेसमेंट उसका 0 हो गया तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0। सिंपल है कि नहीं है? ठीक है ना? Okay, now look at this diagram. So the average velocity of the jewels founded by, look at this diagram. Look at this diagram, Palak. Look at this diagram. So in this diagram we are seeing that यहाँ पे घर बना हुआ है, यहाँ पे एक स्कूल है, और रास्ता कितनी कितनी किलोमीटर है? 8 किलोमीटर है। तो आप मुझे बता दो कि डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस है हमारे पास 8 किलोमीटर, है ना? और उसको टाइम कितना लग रहा है? 15 मिनट्स का। तो टाइम जो है वो 15 मिनट्स का है।
तो इस मिनट्स को आप आवर्स में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 15/60, दैट इज 1/4 आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है एवरेज स्पीड उसकी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने 8 किलोमीटर, और टाइम उसको कितना लगा था 1/4, 4 जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा 32 किलोमीटर पर आवर। ये आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी भी। यही सेम हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। एनी प्रॉब्लम? No. ओके गुड, ठीक है ना। So look at the screen. There are some differences between speed and velocity. Okay. पलक आप कहाँ देख रहे हो, कर क्या रही हो? Sir, I have joined from 2 devices now. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। So this is speed and velocity. There are some differences between speed and velocity. Okay. So first is speed is a quantitative measure of how quickly something is moving. मतलब कितनी तेजी से कोई चीज मूव कर रही है उसको हम स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होती है। ओके, नाउ सेकंड वन इज स्पीड इज प्राइमरली स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मींस व्हाट, द क्वांटिटी which contain only magnitude. Scalar means what, only magnitude. But vector means what, vector means what, magnitude as well as direction, as well as direction. Okay, now third one is it is the rate of change of distance. Speed equal to what, speed is equal to distance upon time. Speed equal to distance upon time. Okay, and if we talk about the velocity, so velocity is equal to displacement upon time. Displacement upon time. Are you getting me or not? Yes, sir. Okay, now the next point is speed of an object moving can never be negative. Speed कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती किसी पार्टिकल की। ठीक है, स्पीड जो है वो कभी भी किसी भी पार्टिकल की नेगेटिव नहीं हो सकती, याद रखना इस बात को। बट वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, if displacement is zero then velocity will also be zero. Okay, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीड इज अ प्राइम इंडिकेटर ऑफ द rapidity of the object and velocity is the prime indicator of the position as well as the rapidity of the object. Means velocity जो है वो हमको position बताती है, the rate of change of position. Velocity tells about rate of change of position. Okay, rate of change of position. Next point is it can defined as the distance covered by an object in unit time. ये तो सिंपल सा फॉर्मूला ही हो गया ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, नथिंग एल्स। दिस इज द फॉर्मूला, distance per unit time means distance upon time, this formula, and velocity is displacement upon time means this formula. Okay, any problem? No, sir. Okay, so this topic is completed now.